Okay, students, very good morning. Today we are going to discuss about the chapter electrochemistry. So, see here, in electrochemistry, by name it is clear electrochemistry. Electro mean electricity, electricity and chemistry. Chemistry mean chemical reactions. Okay. क्या रिलेशन हुआ इनका इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी हाउ दे आर कोरिलेटेड ठीक है तो these things we'll study in electrochemistry electricity and chemical energy electrical energy and chemical energy how they are correlated okay we are going to study in this chapter electrochemistry see here first is what electrochemical cell what is electrochemical cell electrochemical cell is an arrangement in which two metal plates are carbon rod called as electrode are fitted in the same electrolyte. Sometimes same electrolyte, metal electrolyte or maybe different electrolyte. Okay. Two metal plates are sometimes graphite carbon rod is that is dipped in a electrolyte. Electrolyte mean which can conduct electricity that is called electrolyte. Also we can called ionic conductor. तो आयनिक कंडक्टर्स में जब हम क्या करते हैं बच्चों किसी प्लेट को मेटल प्लेट को उसके ही इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ट कर दें या कभी कभी हम क्या करते हैं बच्चों हम लोगों को आप लोगों को बाद में हम बताएंगे इनर्ट इलेक्ट्रोड एंड एक्टिव इलेक्ट्रोड तो इनर्ट इलेक्ट्रोड विच आर नॉट रिएक्टिंग विद द इलेक्ट्रोलाइट्स तो इनर्ट इलेक्ट्रोड भी होता है मे बी हैं दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन रॉड और ग्रेफाइट ठीक है तो arrangement in which two metal plates are fitted in same metal electrolyte or different electrolyte so this arrangement is called electrochemical cell so actually electrochemical cell it is two type see here one is what गैल्वानिक सेल या इसका और नाम है बच्चों वोल्टेक सेल एंड अनदर इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल फर्स्टली you will understood what is the difference between these galvanic cell electrolytic cell actually galvanic cell में here chemical energy converting into electrical energy actually spontaneous reactions are there spontaneous reaction in galvanic cell what happened chemical energy converted into electrical energy spontaneous reactions are there chemical species we are taking spontaneous reaction will happen reaction by itself and chemical energy converted into electrical energy so by chemical energy we are getting electrical energy so that is galvanic cell or voltaic cell in electrolytic cell what are happening just reverse of this here electrical energy converts into chemical energy ध्यान देना बच्चों गैल्वानिक सेल वोल्टेक सेल केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक्स प्लेस हम केमिकल स्पीसीज लेंगे रिएक्शन स्टार्ट होगा एंड वी आर गेटिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी
यहाँ कैसा होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. We will take electrode, we will take chemical electrolytes, chemical species, but when electricity will pass, then reaction takes place. So that type here by self reaction is not happening. That's why non-spontaneous reaction. When electrical energy will pass, chemical reaction takes place. So that type of cell is called electrolytic cell. So two type of cell is there. Electrochemical cell. One is what? Galvanic cell or voltaic cell. Chemical energy converted into electrical energy. Spontaneous reaction takes place. And another is electrolytic cell. Electrical energy convert into chemical energy. And here non-spontaneous reactions are there. And when we are passing electricity through electrolyte, then chemical reaction takes place. So this type of cell is known as क्या कहलाएगा बच्चों, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. अब एक एक चीज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है. फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द गैल्वानिक सेल. Okay, student. See here, in galvanic cell, how chemical reaction converting into the electrical energy, chemical energy converted into electrical energy. Firstly, see here. In 10th standard, you have studied. Suppose karo, I have taken a solution, copper sulfate solution. I have taken. Copper sulfate solution I have taken and a zinc rod. इन जिंक रॉड को इसमें डिप कर दिया बच्चों. एक यहाँ पर I have taken one thermometer also. What we have seen कि this zinc rod, थोड़ी देर बाद देखेंगे बच्चों, ये जिंक रॉड धीमे धीमे गायब हो जा रहा. एंड हियर तुम्हें है अबाउट रेड कलर प्रेसिपिटेट भी मिलता है. कॉपर सल्फेट का जो ग्रीन कलर है डिसअपियर, एंड टेम्परेचर गोज ऑन इंक्रीजिंग. व्हाट आर हैपनिंग देयर? तो 10th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड कि जिंक कॉपर सल्फेट, जिंक कॉपर को क्या करता है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिंक सल्फेट एंड कॉपर. दिस इज एक्वस सॉल्यूशन, दिस इज आल्सो एक्वस सॉल्यूशन, एंड कॉपर सॉलिड, जिंक सॉलिड. And heat energy is what? Energy release. Actually, what are happening? Copper sulfate, spontaneous process takes place. Spontaneous process होगा. Copper sulfate किसमें बच्चों? It will break into ions, copper plus, सल्फेट माइनस, दिस सल्फेट आयंस. अब ये जो सल्फेट आयंस है किस पर अट्रैक्ट होगा बच्चों? जिंक के पास. और जिंक को जैसे सल्फेट आयन दिखा लालच में आ जाता है. व्हाट हैपन? जिंक इट रिलीज 2 इलेक्ट्रॉन्स. 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्या करता है बच्चों? Z+ आयन बनाएगा. और ये Z+ आयन किसके साथ रिएक्ट कर लेता है? सल्फेट के साथ. एंड दे आर फॉर्मिंग कलरलेस जिंक सल्फेट. ये प्रोसेस होता है वहां पे कि कॉपर सल्फेट, कॉपर आयन एंड सल्फेट आयन. और सल्फेट आयन को देखते ही जिंक क्या होता है बच्चों? सॉलिड से रिड्यूस होकर के
दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके Zn प्लस और Zn प्लस सल्फेट के साथ मिल करके अब ये जिंक जो है Zn आयन बनाया, सल्फेट को देखते ही यानी सॉलिड से रिड्यूस होकर के कहाँ आ गया बच्चों, इस सॉल्यूशन में, किस फॉर्म में, ZnSO4 एंड हीट एनर्जी इज इवॉल्विंग, बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी हमें मिलती है। मेन प्रोसेस यही है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये जो हीट एनर्जी हमें निकल रही है, अब हमें इस आई हैव टू यूज दिस केमिकल रिएक्शन, हमें इस केमिकल रिएक्शन का यूज़ करके मुझे क्या करना है बच्चों, ठीक है, दिस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो कैसे हम अभी इस प्रोसेस को हम कैसे सेट करेंगे कि ये जो अभी हीट एनर्जी हमें मिल रही है हीट फॉर्म में, ठीक है, दैट विल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। केमिकल रिएक्शन तो उन्होंने देख दिया कि जिंक जो है कॉपर सल्फेट को क्या करता है बच्चों, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक सल्फेट एंड कॉपर फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसी रिएक्शंस को हम क्या करेंगे, गैल्वानिक सेल के फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, किस तरीके से, तो सी है वी हैव टेकन वन अरेंजमेंट, एक अरेंजमेंट हमने लिया, कैसा अरेंजमेंट था, ध्यान से देखो बच्चों, एक बार ये थ्योरी समझ में आ गई तो आप समझ जाओ कि तुम्हें गैल्वानिक सेल या अदर्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वी हैव टेकन टू अरेंजमेंट, two vessels we have taken, in one what we have done, one electrode, one metal plate, ठीक है, that is copper, and we have taken the solution, यहाँ पर जो solution लिया, ठीक है, वो solution किसका लिया बच्चों, that solution we have taken copper sulfate, copper sulfate solution we have taken. This is copper sulfate solution. Copper sulfate. Another metal plate we have taken here. So this metal plate is zinc metal plate. And solution here we have taken, this solution I have taken as zinc sulfate solution. Zinc sulfate solution, ZnSO4। बच्चों what arrangement we have done, कौन सा एक अरेंजमेंट किया हमने, एक लिया बच्चों जिंक सल्फेट, ठीक है, उसमें एक जिंक रॉड डिप्ट किया या जिंक प्लेट, एंड इन अदर इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कॉपर रॉड, ठीक है, और बाद में इसको कनेक्ट कर दिया आपस में, एक गैल्वानोमीटर लगा दिया टू सी द करंट या जो कुछ भी हो, ठीक है, देखने के लिए। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है, कौन सा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, कॉपर सल्फेट, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, कॉपर प्लस एंड सल्फेट माइनस। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कॉपर प्लस आयन बहुत सारे, यहाँ टेंडेंसी तो मालूम है क्या होगी, जिंक प्लस सल्फेट आयन, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है, होगा क्या बच्चों कि जैसे ही जिंक सल्फेट, it will break zinc plus and sulfate minus, and due to this sulfate ions, अब ये sulfate ions यहाँ पर हैं SO4, ठीक है, ये क्या करते हैं, कहाँ पहुँचेंगे जिंक के पास, मैंने बताया जिंक सल्फेट आयंस को देखते ही लालच में आ जाता है, एंड व्हाट हैपन, दिस जिंक Zn, ठीक है, they are releasing electrons, 2 electrons it will release, ठीक है, these 2 electrons will collect here, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कलेक्ट हो गए बच्चों, इस प्लेट पे,
एंड Zn यहाँ से रिड्यूस होकर के कहाँ आ गया, Zn प्लस फॉर्म में, किस में आ गया बच्चों, दैट इट विल कम इनटू सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन में पहुंच गया, यानी Zn प्लस और ये Zn प्लस और SO4 मिल करके क्या करेंगे, ZnSO4 फॉर्म करेंगे। अब ये Zn रिलीज हो गया, दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस। Another sulfate ion will reduce another, ZnN, ठीक है। यहाँ collection of electrons takes place. If collection of electrons है तो it will becomes क्या, negative electrode। अब ये जो Zn प्लेट था ये कौन सा हो गया बच्चों, negative electrode। And here Zn by releasing 2 electrons converting into Zn plus, and this metal also you can see, अब थोड़ा थोड़ा मेटल सी अब तुम्हारा कम होना शुरू हो गया बच्चों, ठीक है, मेल्ट होना कह सकते हो, ठीक है। अब इसकी थोड़ी साइज क्या होगी, कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, लाइक दैट, ठीक है। तो ये गेट ऑन रिड्यूसिंग, अब ये थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, एंड यू कैन सी हियर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर ऑक्सीडेशन प्रोसेस चल रहा है। अरे भाई लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस, तो बाद में भी हम आप लोगों को बताएंगे वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, तो दैट इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, एनोड। तो दिस विल एक्ट एज ए एनोड, ये किसका काम करेगा बच्चों, दिस Zn plate, दिस becomes negative electrode, ये negative electrode हो गया बच्चों, ठीक है। और जैसे ही negative electrode हुआ है तो आपको मालूम है if we have connected here, तो this electron have a tendency to flow, इसकी टेंडेंसी क्या होगी बच्चों, फ्लो होकर के बाय कंडक्टिंग वायर कहाँ आने की, सेकेंड इलेक्ट्रोड यानी कॉपर इलेक्ट्रोड। अच्छा, व्हाट अबाउट कॉपर, कॉपर क्या करेगा बच्चों, तो सी हियर व्हेन कॉपर सल्फेट आयन एंड कॉपर आयन, ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स कैन कम फ्रॉम दिस Zn टू कॉपर, तो दिस कॉपर हैज a tendency, this will reach at this copper plate and taking 2 electrons, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करता है, गेन करता है इससे, and becoming copper solid। अब ये कॉपर आयन पहुंचता है, अब ये कॉपर आयन चला यहाँ से कहाँ पहुंचा बच्चों, इसके पास, and 2 electrons गेन। अब ये जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और यहीं पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, अब ये डिपॉजिट होना शुरू हो गया। अभी कॉपर आयन डिपॉजिट होगा, कहाँ पर डिपॉजिट होगा बच्चों, एट दिस इलेक्ट्रोड। एक्चुअली दिस कॉपर इलेक्ट्रोड it is losing 2 electrons, this copper ion taken 2 electrons from this plate, यहाँ से लिया तो 2 इलेक्ट्रॉन अगर कोई ले रहा है तो बच्चों यहाँ पर कौन सा टर्मिनल हो जाएगा, अगर कहीं पर लूज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यहाँ गेन, ये जो Zn प्लेट है वो क्या कर रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ निगेटिव, और ये लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो दिस विल बिहेव लाइक ए, अब ये कैसा हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव फॉर्म हो गया, एंड दिस विल बिकम्स positive electrode, and at this electrode what reaction takes place, यहाँ पर कौन सा reaction takes place हो रहा है बच्चों, copper from the solution 2 electrons gaining, gain of electron takes place, तो gain of electron का मतलब क्या हुआ बच्चों, reduction। और अभी हम लोग पढ़ेंगे कि जब रिडक्शन होता है तो उस प्लेट को हम क्या कहते हैं, या उस इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं बच्चों, कैथोड। So this copper electrode behaves like a cathode, and this zinc electrode behaves like a anode, and you can see here electron is transferring, electron कहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, Zn से किस तरफ जा रहा है बच्चों, कॉपर की तरफ, तो flow of electron is from Zn to copper, so you can see electron directional current, conventional
व्हेन वी आर गिविंग डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, तो फ्लो ऑफ अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ बच्चों, हमें ये करंट का डायरेक्शन दिखेगा, यानी करंट आई कहाँ से कहाँ फ्लो होगा बच्चों, दिस कॉपर टू Zn, और यू कैन से कैथोड टू एनोड, और कॉपर इलेक्ट्रोड टू जिंक इलेक्ट्रोड. How to, by chemical energy, how we have found the electrical energy, in which direction current will flow, in which direction electron will flow, सब मैंने आप लोगों को दिखाया. क्या केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस, तो मेन यहाँ पर अगर हम देखें इलेक्ट्रोड एंड सॉल्यूशन, तो व्हाट आर द रिएक्शन टेक्स प्लेस, Zn has loses 2 इलेक्ट्रॉन एंड Zn प्लस कहाँ हो गया बच्चों, आ गया कहाँ, सॉल्यूशन, ठीक है, एंड फॉर्मिंग ZnSO4, ठीक है. और यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, कॉपर एंड सॉल्यूशन से 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके क्या बनाया, सॉलिड कॉपर, एंड स्टिक कर गया कहाँ पे, इस कॉपर. तो एक तरीके से देखेंगे यहाँ लॉस ऑफ, इस इलेक्ट्रोड का देखेंगे तो लॉस ऑफ मटेरियल है, यहाँ क्या होगा बच्चों, डिपोजिशन ऑफ मटेरियल, यहाँ मटेरियल थोड़ा डिपॉजिट होगा, यहाँ पर क्या होगा, लॉस होगा. अब एक क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में उठना चाहिए, सपोज करो 2 लाख इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, तो 2 लाख और 2 × 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर लिए, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा, तो सी है मैंने अभी क्या बताया, तो Zn रिड्यूस हुआ किस फॉर्म में, Zn2+, ठीक है. अभी Zn2+ फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, दिस Zn+ रिएक्टेड विद सल्फेट आयन, क्या बनाया बच्चों, ZnSO4, तो ये Zn+ तो क्या हो गया बच्चों, दिस Zn+, अब ये Zn+ यहाँ कलेक्ट होता जा रहा है, भाई यहाँ से Zn सॉलिड वाला किस में कन्वर्ट हुआ बेटो, Zn+, और वो सल्फेट, ये सल्फेट से कंबाइन कर लिया और क्या बनाया, ZnSO4. लेकिन ये Zn जो है इसके साथ वाला अभी तो फ्री हो गया, ये अकेला हो गया. अब ऐसे बहुत सारे Zn यहाँ पर कलेक्ट होते जाएंगे. अब जैसे जैसे Zn कलेक्ट होगा तो हम क्या कहेंगे बच्चों, दिस इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स क्या होगा, पॉजिटिव. अब ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो तुम्हारा कैसा होगा, बोलो, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव आयंस. जैसे जैसे पॉजिटिव आयंस कलेक्ट होगा तो व्हाट हैपन, अभी जो न्यू SO4 है या न्यू इलेक्ट्रोलाइटिक हम कहेंगे डिकम्पोजिशन, उनको रोकना शुरू करेगा, और जो Zn यहाँ से आने वाले हैं उनको भी ब्लॉक करेगा, ठीक है. तो थोड़ी देर बाद हम देखते हैं क्या होगा बच्चों, रिएक्शन विल स्टॉप, मीन नो इलेक्ट्रॉन्स विल डेवलप. अब फर्दर इलेक्ट्रॉन का डेवलपमेंट यहाँ बंद हो गया. अभी नेगेटिव टर्मिनल जो और बढ़ रहा था वो धीमे धीमे क्या हो गया, रुक गया. क्यों, क्योंकि दिस जो सॉल्यूशंस था अब उसमें एक्सेस किसका होने लगा बच्चों, Zn+ का. जस्ट अपोजिट यहाँ पर क्या हुआ बच्चों, कॉपर आयन. अब ये कॉपर आयन कहाँ चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर बना लिया, कॉपर सॉलिड. तो ये सल्फेट आयंस, अब ये सल्फेट आयंस यहाँ पर बढ़ने शुरू हो गए. अब ये SO4 इसका कलेक्शन बढ़ना. अब ये जैसे जैसे इनका कलेक्शंस बढ़ेगा यानी नेगेटिव आयंस बढ़ेंगे, वो जो कॉपर आयन है उनको यहाँ पर क्या होगा, फ्लो होने से रोकेंगे. भाई नेगेटिव है नहीं पॉजिटिव है, उसको अट्रैक्ट करेगा. अब क्या करें, यहाँ Zn बढ़ रहा था, ठीक है, हमें करंट तो मिला, लेकिन यहाँ Zn आयन और यहाँ सल्फेट आयन. अब इस कमी को कैसे दूर करें, ठीक है. अभी दिस इलेक्ट्रोलाइट बिकम्स पॉजिटिव नेचर, अब ये कैसा हो गया, नेगेटिव नेचर, ठीक है. सर्किट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है फ्रॉम हियर टू हियर, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन फिर यहाँ से यहाँ पर आना चाहिए तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा, वी विल गेट कॉन्टिन्यूअस करंट. तो इस चीज़ को दूर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं बच्चों, ठीक है, इन सॉल्यूशंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए वी आर यूजिंग सॉल्ट ब्रिज. एक सॉल्ट ब्रिज का यूज करते हैं, यूजिंग लाइक दैट सॉल्ट ब्रिज. ये हमारा सॉल्ट ब्रिज, ये सॉल्ट ब्रिज.
इज सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज. ठीक है. एक्चुअली इन सॉल्ट ब्रिज व्हाट आर हैपनिंग, जनरली हम क्या करते हैं बच्चों, KCl, अमोनियम नाइट्रेट भी ले सकते हो, है? एक दो इलेक्ट्रोलाइट आप ले सकते हैं अगर सोल्यूशन 5%, अगर सोल्यूशन. ठीक है. हाउ आर मेकिंग सॉल्ट ब्रिज? इन सॉल्ट ब्रिज सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ KCl. सैचुरेटेड सोल्यूशन हम किसका लेंगे बच्चों, KCl का या अमोनियम नाइट्रेट का. उसमें 5% अगर सोल्यूशन, ठीक है, या हम कह सकते हैं अगर का जो है सॉलिड फॉर्म में अगर को भी हम मिक्स कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सैचुरेटेड सोल्यूशन, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन KCl का मिक्स्ड विद अगर सोल्यूशन, अगर, ठीक है, और उसको फिर कूल कर दो तो इट विल कन्वर्ट इनटू तो पेस्ट फॉर्म में. किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, पेस्ट फॉर्म. पेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, दे कैन नॉट कम आउट फ्रॉम दिस, ये यूट्यूब से बाहर नहीं आ सकते. अदरवाइज क्या है, लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो ये इसमें मिक्स करिए. इलेक्ट्रॉन कैन गो थ्रू दिस सोल्यूशन, यहाँ से इलेक्ट्रॉन पास हो सके लेकिन सोल्यूशन इधर उधर ना जा पाए. ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन का काम करेगा. ठीक है, जो यहाँ पर अभी नेगेटिव इलेक्ट्रोड बना है, सॉरी नेगेटिव सॉल्यूशन बना है, यहाँ पर पॉजिटिव सॉल्यूशन, तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ फ्रॉम नेगेटिव सॉल्यूशन से अभी इस इलेक्ट्रॉन को कहाँ पर वो ट्रांसफर करा देगा बच्चों, बाय दिस सॉल्ट ब्रिज these electrons will flow from here and ये इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से फ्लो करके फिर इसको क्या करेंगे बच्चों, न्यूट्रलाइज, सर्किट कंप्लीट कर देगा. Zn यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करके कहाँ गए बच्चों, कॉपर पे, और फिर यहाँ सोल्यूशन वाले इलेक्ट्रॉन फिर से फ्लो होकर के कहाँ आ गए. अब ये पूल सर्किट विल बी द कंप्लीटेड. ये YouTube in which we have taken saturated solution, hot solution. After that we will cool it. Agar solution with mix up agar KCl or NH4 ammonium nitrate. Okay. This will salt bridge. क्या करते हैं बच्चों, salt bridge, which will connected from one electrolyte, left hand side electrolyte to right hand side electrolyte. Function of this salt bridge is what? To neutralize. एक तो make a junction between the two electrolytes, इनके बीच में junction का काम करेगा, and allow to flow of charge from one electrolyte to, ठीक है, for complete circuit को complete करने के लिए, and also we can say neutralize. किसको न्यूट्रलाइज करेगा बच्चों, ये जो दोनों सॉल्यूशंस हैं, when electron will pass through from here to here, इन सॉल्यूशंस को क्या करेगा बच्चों, सॉल्ट ब्रिज इलेक्ट्रोलाइट, ताकि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, कॉन्टिन्यूस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड कॉन्टिन्यूस करंट वी कैन टेक. पूछा जाता है आपसे व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज. ठीक है, और वन थिंग मोर, ठीक है, इफ दिस इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज नेगेटिव, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे पॉजिटिव एंड नेगेटिव करंट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हियर दिस बिकम्स पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया था सॉल्यूशन, एंड ये कैसा हो गया था, नेगेटिव, एक अपोजिट इलेक्ट्रोड डेवलप हुआ था. एक्सटर्नल तुम कहोगे कहाँ हुआ था बच्चों, ऑन रॉड फ्रॉम कॉपर टू जिंक, तो हम इंटरनल आप देखेंगे सॉल्यूशन में एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड डेवलप, नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विच विल अपोज द क्या, एक्सटर्नल फील्ड, उनको क्या करेगा, अपोज करेगा. तो इसको भी अगर हम इस सॉल्ट ब्रिज के द्वारा क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड या नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज डेवलप्ड इनसाइड द सॉल्यूशन, उसको भी ये क्या करता है बच्चों, अपोज करता है या फिनिश करता है. ठीक है, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज.
यहाँ you can understood कि how chemical energy we are converting into electrical energy. तो Zn rod dipped in zinc sulfate solution, copper rod dipped in copper sulfate solution. Here zinc from the plate, ये क्या होगा बच्चों, ठीक है, that will convert into liquid form. धीमे धीमे इसको क्या होगा बच्चों, रिड्यूस होता जाएगा, कम होता जाएगा, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉन्स विल डेवलप हियर, ठीक है. और यहाँ पर क्या होगा, कॉपर जो है डिपॉजिट होगा, इलेक्ट्रॉन्स दे विल गेन फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड, तो दैट विल बिकम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव व्हेन वी आर कनेक्टिंग देम, ठीक है, ए करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू यानी कैथोड टू एनोड, ठीक है. हियर सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट्स वाई इसे हम क्या कहेंगे बच्चों एनोड. और यहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा रिएक्शन हो रहा है बच्चों, रिडक्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो जहाँ पर भी रिडक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कैथोड. तो टोटल का रिजल्ट क्या निकला बच्चों, अब जरा ध्यान से सुनो. गैल्वानिक सेल, it is made up of two half cell, दो हाफ सेल, ठीक है, 1 and 2. ये तुम्हारा कौन सा है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड LH. ये कौन सा, राइट हैंड साइड. तुमने देखा राइट हैंड साइड पर कौन सा होता है बच्चों, रिडक्शन. लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हुआ बच्चों, ऑक्सीडेशन. Two half cells are there. One is in left hand side, another is in right hand side. Right hand side reduction takes place. Left hand side क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन. जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसका स्पेशल नेम है, क्या है बच्चों, एनोड. तो जो राइट हैंड साइड होगा वहां पर तुम्हें क्या मिलेगा बच्चों, उसे हम कहेंगे एनोड. और जो राइट हैंड साइड रहेगा, रिडक्शन जहां पर होता है उसे हम क्या कहेंगे बच्चों, कैथोड. और सीरीज बात है, एनोड का मतलब क्या हुआ बच्चों, रॉड एंड सॉल्यूशन के बीच या प्लेट एंड सॉल्यूशन के बीच क्या है, यहाँ पर कौन सा रिएक्शन लिख रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इलेक्ट्रोड या प्लेट, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज देयर एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज कलेक्टेड हियर, तो दिस विल बिहेव्स लाइक ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड. ये किसका बिहेव करेगा बच्चों, नेगेटिव इलेक्ट्रोड. और ये किसका बिहेव करेगा बच्चों, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉल्यूशन, ठीक है, कॉपर फ्रॉम सॉल्यूशन, दे आर टेकिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द प्लेट, दिस विल बिकम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. ये चार बातें ध्यान में रखो. जो हमारा गैल्वानिक सेल है, देयर आर टू हाफ सेल्स, दो हाफ सेल होंगे, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा कौन सा, राइट हैंड साइड. लेफ्ट हैंड साइड हमेशा क्या होगा बच्चों, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, दैट्स वाई लेफ्ट वाले को हम क्या कहेंगे बच्चों, एनोड. राइट हैंड साइड रिडक्शन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, कैथोड. जो राइट हैंड साइड इलेक्ट्रोड है वो कैसा बिहेव करेगा बच्चों, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. एंड लेफ्ट हैंड साइड जो कैसा बिहेव करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड. एंड ये जो सॉल्यूशंस हैं, दे आर कनेक्टेड विद ए यू ट्यूब स्ट्रक्चर, ठीक है, नेम्ड एज क्या, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है. ये जो सॉल्ट ब्रिज होगा बच्चों, इसका मेन फंक्शन क्या है, न्यूट्रलाइज करना इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स को. फर्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग टू कंप्लीट द सर्किट. थर्ड थिंग हम कह सकते हैं कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बन रहा है अपोजिट टू एक्सटर्नल हैं, उसको अपोज करना. और एक कह सकते हैं इन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो है मेंटेन करना, ठीक है. तो these are the, इसे हम कहेंगे बच्चों गैल्वानिक सेल. गैल्वानिक सेल में how we are writing the half reactions, what is reduction potential, what is cell potential, ठीक है. अब ये हम लोग जो है फर्दर वी विल स्टडी, ठीक है. व्हाट आर द नोटेशंस, हम कैसे इसको नोटेशंस कैसे करते हैं,
ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट हम लोग कैसे सेल को फॉर्म करेंगे, ड्राई सेल को, वी विल स्टडी इट आफ्टर दैट। Okay, sure. What I told you in galvanic cell, this is Zn, ZnSO4, copper, copper SO4. Here Zn releasing electrons, loss of electrons. It will behave like a negative electrode. This is called anode. Why? Because reduction takes place. Sorry, oxidation takes place. Oxidation. Here copper, they are gaining electron, gain of electron, that is reduction. The reduction takes place. That's why this is called cathode. Reduction. You can see here in galvanic cell, two half reactions takes place, oxidation and reduction. Redox reaction, two half at anode, half at cathode. So how we are representing? The first thing, okay, always this oxidation we are taking left, and reduction reaction always we are writing or showing in right hand side. How formulate short notations are there? Okay. So see, it is very very important to formulate. The first thing, okay, कि we are denoting these solid to solution. They are separated by a single line. When we are writing the half cell reaction, we are taking solution first. And solid second. This Zn has come in solution, so this is solution, aqueous, and this is solid. So when half reactions we are writing, so we are writing always in reduction form. Mean solution we are writing left, and solid form we are writing right. Same way here also, half reactions if you are writing, so first solution we are writing, then this single pi that denote the connection between or combination between electrode solid to solution, okay, junction, it will show. So and half reactions we are denoting, okay, so we are writing in reduction form always. But when we are writing the formulation of galvanic cell, yeah, total redox reaction we are writing, we are formulating short notation. So firstly, always left hand side we are writing anode reaction, and right hand side we are writing cathode reaction. Achha, here you can see in left hand side oxidation takes place, so we will write oxidation, mean Zn solid converting into Zn left hand. Anode reaction always firstly write in left hand side, left up part in formulation short notation, write anode reaction or oxidation reaction. Cell consists of two half reaction, one is oxidation, another is reduction. The oxidation reaction, or you can say left hand side, are negative electrode reactions you are writing left, and cathode reaction or reduction reaction we are writing in right hand side. Firstly we will write the solution, then solid.
Cu plus 2Cu, which is here. If solid is there, aqueous solution, take it, you can represent in a small letter near the symbol. If Zn solid is there, तो Zn solid. Copper solid is there, तो you can. Junction of electrode to solution, that is denoted by single pi. This is solution, the aqueous solution. This is the aqueous solution. Here aqueous solution, the aqueous solution. This is left LH, left hand side reaction. This is right hand side. Always left hand side we are taking first, that will show the electrode and solution. Here solution to electrode, solid. Here anode reaction. Left hand side always right, anode. राइट हैंड साइड कौन सा रिएक्शन होगा बच्चों? कैथोड. एनोड मीन कैसा रिएक्शन? ऑक्सीडेशन. राइट हैंड साइड किसको लिखना है बच्चों? रिडक्शन रिएक्शन. इन सिंगल रिएक्शंस वी आर राइटिंग ओनली रिडक्शन रिएक्शन. सिंगल रिएक्शन की हम बात करेंगे तो सिर्फ रिडक्शन रिएक्शन ही हम लिखते हैं. ध्यान देना, सिंगल रिएक्शन की बात करते हैं. लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कंबाइंड फुल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, तो इन लेफ्ट हैंड ऑक्सीडेशन, राइट हैंड रिडक्शन रिएक्शन. एंड हाउ दे आर कंबाइनिंग, कैसे हम इनको कंबाइन करते हैं बच्चों? तो दे आर कंबाइनिंग विद दिस, combined with these solutions are combining with salt bridge. तो salt bridge we are representing by 2. ठीक, तो ये दो डबल पाई से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? सॉल्ट ब्रिज को. ठीक है. अच्छा, वन मोर थिंग, समटाइम्स हियर इन प्लेस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन के स्थान पर हम किसको लिख सकते हैं बच्चों? ठीक है. व्हाट आर द कंसंट्रेशन इज गिवन. सपोज करो वी हैव टेकन molar T 1 mole, molar T 1 mole per liter. ठीक है. तो we can also write the here molar T R concentration. So this also can be written like that. ZnS Zn double plus molar T, suppose 1 m is there. Salt bridge, copper sulfate, suppose this is also 1 m. ठीक है. Here copper. So this is the representation of a formulation, short notation of a galvanic cell. ध्यान रखो बच्चों, हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड होगा, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन का, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? इसके लेफ्ट पार्ट को. लेफ्ट पार्ट का मतलब एनोड, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन. ये किसको शो करेगा? राइट वाला कैथोड, मतलब रिडक्शन रिएक्शन. ये किसके जंक्शन को शो करता है? सॉल्यूशन एंड सॉलिड, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट. सिंगल पाई सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट. ये आपका शो करता है किसको बच्चों? दैट विल शो द सॉल्ट ब्रिज. ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ these electrolytes are combined with the help of salt bridge. So ये double pi, that will show the salt bridge. So one more thing you have to know. Sometimes we will say there are two type of electrode. One is inert electrode and another is active electrode. Inert electrode only they are not taking part in the reaction. Only they are transferring the electron. When we will study about the hydrogen electrode, बच्चों बाद में जब हम लोग हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का देखेंगे तो वहाँ पर यू विल सी, ठीक है, कि वी आर टेकिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. हाइड्रोजन गैस वी आर यूजिंग हियर H2. ठीक है. तो हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग, हियर HN इज देयर. ठीक है. हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग, हम यहाँ पर इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, ठीक है, वहाँ पर तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन गैस, तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाता है. व्हेन वी आर शॉर्ट नोटेशंस वी आर टेकिंग. सी हियर व्हाट आई हैव टोल्ड यू. ठीक है. लेफ्ट हैंड एनोड रिएक्शन, तो Zn किस में कन्वर्ट होगा बच्चों? Zn सॉलिड
Zn plus suppose concentration is 1m salt base, here in solution H plus n, ठीक है. अब H plus है, सपोज करो 1 मोल, मोलरिटी इज 1, इट इज कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोजन गैस. तो यहाँ पर क्या है बच्चों, H plus converting into hydrogen gas, तो H2 gas you will write, and what will be the pressure? If gaseous form is there, तो pressure will be, you will write here pressure, ठीक है. If pressure is 1 atm, तो you will write here 1 atm, ठीक है. And what is inert electrode you have used? Suppose you have used here platinum, so you will write here 1 platinum electrode, Pt, like that. We will write, if any gaseous structure is there or pressure is given, so we can write in right hand side near the solution or near the gaseous whatever there, and inert electrode we will writing in the right of that are nearby that solution. उस solution के पास में ही हम क्या करेंगे बच्चों, उस inert electrode को भी define करेंगे. तो ये आपका notation हुआ when there is a inert electrode. Inert electrode का मतलब बच्चों which are not taking part in the reaction, वो सिर्फ क्या करते हैं, they are transferring the electron from solution to terminal, ठीक है. तो inert electrode, तो we can represent inert electrode and gaseous state and pressure towards the right hand side of the gas or whatever the metal are there, we can write these things. So this is the notation for when zinc and hydrogen electrode we have taken. Okay, see, suppose they have given in short notation form any galvanic cell representation, तो how we can write the cell reaction, हम इसे cell reactions कैसे लिख सकते हैं. एक दिया हुआ है बच्चों, निकल है सॉलिड, निकल आयन 1m, कैथोड पर तुम्हारा कौन है बच्चों, एल्युमिनियम एंड एल्युमिनियम सॉलिड. ओके, तो हाउ यू कैन राइट द सेल रिएक्शन, हम इसे सेल रिएक्शंस कैसे. देखो मैंने पहले ही बताया था बच्चों कि लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो हमेशा कौन सा रिएक्शन होता है, ठीक है, एनोड रिएक्शन, ऑक्सीडेशन. राइट हैंड साइड हमेशा कैसा होगा, कैथोड, दैट इज रिडक्शन. तो अगर एनोड हाफ रिएक्शंस वी वांट टू राइट, एनोड हाफ रिएक्शन, एनोड हाफ रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, तो निकेल किसमें कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, Ni, how many electrons they lose, 2 electrons. ये कौन सा हो गया बच्चों, दिस इज, ये है तुम्हारा पहला रिएक्शन, एनोड हाफ रिएक्शन. राइट हैंड साइड कैथोड हाफ रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन, कैथोड हाफ रिएक्शन अगर लिखोगे दैट इज रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या है बच्चों, एल्युमिनियम फ्रॉम सॉल्यूशन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन, एंड इट विल फॉर्म एल्युमिनियम सॉलिड. अच्छा यहाँ पर एक चीज ध्यान देना बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे उतने ही गेन होंगे. यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है, तो इसको हमें बैलेंस करना पड़ता है. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी सेम बोथ साइड. तो क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाइड यहाँ 3 कर दो, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 2. तो व्हाट हैपन, तो दिस विल बिकम, मैं यहीं पर लिख दे रहा हूँ बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करो तो 3, ठीक है, और वी कैन राइट हियर 3ni 2 plus 6 electron, and here multiplied by 2, तो 2al 3 plus 3 electron, it will convert to al. अब add this is, ये दोनों ऐड कर दो बच्चों,
ठीक है, तो यही आपका क्या होगा बच्चों, सेल रिएक्शन. तो व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन? तो सेल रिएक्शन, एक चीज ध्यान देना बच्चों, इन सेल रिएक्शन वी आर नॉट राइटिंग द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. सॉरी, ये 2 3 जा 6. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन विल कैंसिल. तो व्हाट विल बी द सेल रिएक्शन? तो सेल रिएक्शन इज क्या, 3Ni प्लस 2Al, 6 electron both sides, this will cancel out, so that will becomes 3Ni plus 2Al. तो ये है किसका रिप्रेजेंटेशन बच्चों, सेल रिएक्शन. तो सेल रिएक्शन फॉर दिस गिवन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ ए गैल्वेनिक सेल, 3Ni plus 2Al, 3 plus 3Ni, 2 plus 2Al. So remember one thing, number of electrons should be same both side. Write down anode half reaction or oxidation half reaction, write down reduction half reaction, balance equal the number of electrons both side and add it, so you can get the cell reaction. Okay.